Exercise 3.2 class 10th mathematics lesson number 3rd. Now question number 1 is I am going to discuss 10 students of class 10th took part in a quiz. There is a quiz competition and 10 students are participating in that quiz. If number of girls is more than boys, that means both boys and girls both are participating in that quiz, and number of girls is 4 times than the boys. Find the number of boys took part in the quiz. Now if you just analyze the question, total number of students is equal to 10. Total number of students which are participating in the quiz are 10, and both boys and girls, they are participating in the quiz, that is equal to 10. Now just read out the condition. Number of girls is 4 more than boys. That means number of girls is equal to 4 more than boys. More than matlab plus. Let girls is equal to x and boys let it be y. Okay. Then we substitute in these equations. We get x plus y is equal to 10. For the girls we have x, that is 4 plus. For the boys we have y. Now we have to find the number of boys. That means we have to find value of y. Okay. Now find out the value of y. Y is equal to x minus 4. We take here and substitute this value of y in this equation. Put this value of y in this equation. Now we have the equation x plus y is equal to 10. X plus value of y is x minus 4 is equal to 10. We add x and x, that is 2x minus 4 is equal to 10. Take 4 on the right hand side. We get 10 plus 4, that is 2x is equal to 14. Value of x is equal to 7. Now x is number of girls and we have to find the number of boys. So number of boys, that is y is equal to x minus 4. Number of girls 7, that means 7 minus 4 which is equal to 3. So there are 3 boys who are participating in the quiz. Okay, next question. Now question number 1, second part, given in the NCERT book, exercise 3.2. If 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. एक बच्चे ने, एक इंसान ने 5 पेंसिलें और 7 पेन खरीदे और उसने 50 रुपए दुकानदार को दिए. Whereas 7 pencil and 5 pen cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. पहले आप डेटा बना लो. आपने मान लीजिए पेन बनाया और ये पेंसिल बना लिया. ठीक है. पेंसिल कितनी है? पहले पेंसिल दिया हुआ, पहले पेंसिल लिख लो, इजी पड़ेगा. फिर ये पेन हो गया. पेंसिल कितनी है? 5. पेन कितने हैं? 7. इनकी कॉस्ट कितनी है? 50. फिर 7 पेंसिल है, पेन कितने हैं? 5. इनकी कॉस्ट कितनी? 46. अभी डेटा आपको बहुत इजीली चीज़ों को समझा रहा होगा. नाउ लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x, cost of 1 pen is equal to y. Now we frame the equations. जहाँ पे पेंसिल है उसको x से मल्टीप्लाई करना है. 5x plus 7y is equal to 50. Similarly 7x plus 5y is equal to 46. Now we have to find the cost of pen and pencil. आप इसको कैसे सॉल्व करो? इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं अलग से बनाऊंगी, आप उसको देखना. ये जो 5 है इससे हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 7 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करो. 5 5 जा 25x, 35y, 5 5 जा 25, 250. 7 से करो. 7 7 जा 49x, 35y, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 28 8 4 32. अब यहाँ पे साइन चेंज कर दो. दिस नोन एज एलिमिनेशन मेथड. ये क्रॉस हो गया. आप इसको सॉल्व करो. माइनस 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, x. यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा. 2, 12 में से 5 गया 7. अब ये दोनों माइनस कट गए. x इज इक्वल टू 72/24. 8 से काटो. 8 9 72.
8 3s are 24, 3 3s are 9. So value of x is 3. That means cost of one pencil is rupees 3. अब आप cost of one pen निकाल लीजिए किसी भी एक इक्वेशन में रख के. मान लीजिए मैं पहली इक्वेशन में रख रही हूँ. अगर मेरे वीडियो आपको स्पीडी लगे आप वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आएगा आपको. 3 है x की जगह, क्योंकि मैंने x को 3 माना है, तो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 50. इक्वेशन में हमने रख दिया. आप चाहे ऐसे कोई दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आपका आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम इसी इक्वेशन में रखें. तो ये 15 हो गया, ये 7y हो गया, ये 50 हो गया. नंबर्स हम उधर लेके चले गए. 50 माइनस 15 सबट्रैक्ट देम. 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3. y is equal to 35 by 7 which is equal to 5. So cost of pen rupees 5 and cost of pencil rupees 3. So in this way you can solve these questions. Now question number 3rd and 4th, I have made separate videos in which I explain what is parallel condition, what is coincident and what is intersecting. You can watch this video separately and try to understand that concept in detail. And after that I am going to explain the next question of this exercise 3.2. Let's watch. Now the question number 5th of exercise 3.1. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा. अब आज इस क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़िए. पहला क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है. ये देखिए, ये आपका गार्डन बन गया, रेक्टेंगुलर गार्डन. इसमें लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ. मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रेथ है. अब रिलेशन क्या दी है, लेंथ इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर, विड्थ को हम ब्रेथ कहते हैं, ब्रेथ. ये आ गया रिलेशन. अब क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B. अब लिखा है हाफ द पेरीमीटर, यानी इस पेरीमीटर का हमें हाफ निकालना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये केवल आ जाएगा L प्लस B. हाफ द पेरीमीटर, ये सब छोड़ दो, इज 36 मीटर, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 36 मीटर. ये तो आपकी जो इक्वेशन बनी, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है. ये क्वेश्चन था बहुत आसान, लेकिन उसको एकदम उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कर दिया गया कि समझने में आपको दिक्कत आ जाएगी. अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x, ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ मतलब विड्थ, इज इक्वल टू 1. तो आप यहां देखिए, यहां लेंथ है, तो लेंथ की जगह x आ गया, ये 4, ब्रेथ की जगह y आ गया. ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, तो लेंथ की जगह x आ गया, ब्रेथ की जगह y आ गया, इज इक्वल टू 36. तो सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. यहां पर आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब आप आराम से देख रहे हैं कि आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. यहाँ दिया x की वैल्यू 4 प्लस वाई के बराबर है. आप यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36. 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 36. तो 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 32 बाई 2, that is 16. अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस
y की वैल्यू कितनी आ गई 16, दैट इज 20. तो इसका लेंथ हो गया 20 मीटर और ब्रेथ हो गया 16 मीटर. You can also solve these two equations by different method. I am going to explain that method also. Which method you want to follow, you can adopt that method. It's your choice. आपकी ये equations दी गई है और ये जो मेथड है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं. और जिस मेथड से अभी मैंने क्वेश्चन किया था इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं. और अब मैं जो मेथड बताने जा रही हूँ वो एलिमिनेशन मेथड है. इसमें आपको क्या करना होगा, x और y का जो भी डिजिट है सब राइट हैंड साइड में रखना है. तो ये आपका इक्वेशन तो राइट हैंड साइड में है, ये वाला नहीं है. तो आपने x लिखा, ये y आप इधर लाओगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन को अपना रेडी करना है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है. अगर वैल्यू यहाँ नहीं होती तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. और अब हम इसको देखिए, ये प्लस माइनस से कट के सॉल्व हो जाएगा तो साइन भी नहीं बदलेंगे, ये कट गया. 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/2 विच इज इक्वल टू 20. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन. आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. मान लीजिए हम नीचे वाली में कर रहे हैं, किसी में भी आप कर सकते हो. x का वैल्यू कितना है 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20 माइनस 16 माइनस वाई, दैट इज y इज इक्वल टू 16. अगर आप इसमें भी रखोगे तो भी आ जाएगा. हम उसमें भी रख के दिखाते हैं आपको. जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो. x का वैल्यू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36. तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, ये देखिए 16. So in this way the exercise 3.2 is finished. There are 2 more questions which are based on the graph and you can draw, and question number 3 and 4 and 5 they are explained in separate video, how to find the parallel and intersecting lines etc. You watch that video and can solve that. Thank you.